Can you check and let me know? Hi, good evening, everyone. Hi, good evening. Namaskar. Am I audible? Can anyone let me know if I'm audible and can see me also so that I can start? Oh, that's good. So, thank you very much for letting me know. Sure, we can start. I'm waiting more people to join. I'm waiting for the people to join so that I can start. It's almost 6 o'clock because my timings again it's 6 to 7 p.m. I've been given this timing. Good evening, everyone. I Namaskar. I think
मैं चाहूँगी कि धीरे धीरे आई एम श्योर पीपल विल ज्वाइन। शाम का वक्त है। Anyone can let me know so that I can start with my session. So I'm starting because it's almost 6 to. I'm sure people will join and also let me know that they're there. Yes. I'm sure I'm audible. Once again, good evening to all of you. Namaskar. So great. Good evening once again to all of you. People are joining. Yes, that's a good thing. So let me introduce myself. I'm Dr. Kamal, a naturopath and a diet consultant. आज मैं योग इंडिया फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे लाइव हूँ और मेरा जो आज का जो सेशन है वो है कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं डाइट और योग के द्वारा, और किस तरह से आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है जो मैं आपसे इसके ऊपर अपने विचार साझे करूंगी। I'll be sharing my thoughts with you. With the outbreak of coronavirus, COVID-19, all of us are scared. अंदर ही अंदर हमें डरे हुए हैं. It started with China and slowly it spread across the countries world over. People are actually scared. But अब धीरे 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 I mean ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि कल अभी न्यूज में था कि न्यूजीलैंड से कोविड-19 से कोरोना वायरस से कंप्लीटली उन्होंने मुक्ति पा ली है. देयर आर 0 केसेस इन देयर कंट्री. सो इट्स अ गुड न्यूज. सो आई एम श्योर वेरी सून हम भी इस पे विक्ट्री पा लेंगे, क्योंकि एक जो आज मेरे आपसे रूबरू होने का एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें, बिकॉज एज ए नेचुरोपैथ, एज ए डाइटिशियन, एज ए डाइट कंसल्टेंट, कि ये मैं आपसे शेयर कर सकूं कि हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इट्स लाइक अ वायरस, नॉर्मल वायरस वी नॉर्मली जैसे कि हमें वायरल फ्लू हो जाता है, एक वायरल फीवर हो जाता है, हम क्या करते हैं, हमें पता, समटाइम्स हमें पता भी नहीं चलता, वी डोंट इवन गेट टू नो and we get cured without taking medicine. So it is just like any other virus. But the only difference in this virus and the other virus is this is contagious. एक ये महामारी है जो सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती है. तो
अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें ये तो चैलेंज अपने पास है ही, इसका तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, पर अगर मुझे अपनी इम्यूनिटी सदा के लिए फॉर अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग करनी है तो मुझे क्या करना होगा? एक तो इस महामारी से मुझे बचना है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सब डरे हुए हैं। एक डिफरेंट सी हमारी जो एक लाइफ पहले थी वो अब लाइफ नहीं है, लाइफ पूरी की पूरी बदल चुकी है, सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज्ड। तो हम इस एक चेंज्ड दुनिया में, चेंज्ड लाइफ में हम कैसे सरवाइव करें विद अ गुड हेल्थ, विद अ गुड इम्यूनिटी? Correct. So that's the kind of a challenge we have in front of all of us. So today I would be discussing with you that how actually we can work on our health, how we can work on our immunity, enhance our immunity, boost our immunity by keeping small changes in our diet and our lifestyle. और ऐसा लाइफस्टाइल हम अपनाएं कि हमें कल किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है जी, मुझे आप एक नुस्खा दीजिए, right? Give me some kind of a suggestion so that I can actually work on my immunity. क्योंकि आज अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे how to boost your immunity, how to increase your immunity, how to enhance your immunity, or maybe you pick up any kind of an Insta post, or maybe any kind of a Twitter post or a Facebook post, you will find number of people posting around, how to boost immunity. उसमें कई immunity booster juices are there, small tricks are there, tips are there. So every day कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपनी इम्यूनिटी बूस्टर की रेसिपी डाल रहा है उसके अंदर। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसा टिप अपनाएं, अपने लाइफ में वो चेंजेस लेकर आए जिससे आपकी इम्यूनिटी सदा के लिए बनी रहे। हमें किसी डॉक्टर, हमें किसी थर्ड पर्सन पे उसके लिए निर्भर नहीं होना पड़े। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज एक हमारी बॉडी की एक इसे रोगों से लड़ने की हमारी बॉडी की क्षमता है कि अगर हमारे बॉडी पे कोई भी रोग, कोई भी वायरस अगर अटैक करता है तो हमारे बॉडी में उसमें हमें उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी बॉडी में अटैक करे, बॉडी उसको निकाल के बाहर फेंके, इतनी हमारी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो इम्यूनिटी जो है वो हमारी शील्ड है। That's a shield which is going to protect our body. So that this shield has to be strong enough. तो आज हम जानेंगे कि उस शील्ड को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हम में से बहुत लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप जानते भी हैं, but the only thing is हम उनको भूल गए हैं, या हमें कोई याद दिलाता है तब याद आता है, या कुछ उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि जो एक नया लाइफस्टाइल का कल्चर जो हमने अपनाया है उसमें उनको एक आनंद आता है, एक मजा, दे फील गुड अबाउट इट, दे फील गुड, दे फील a status symbol. I think health is more important, not the status symbol. If you have a health, you have a status. If there's no health, you're not there. So please understand, immunity is health. Now there is something called I'm sure all of you might be knowing, there's a shakti, there's a power which is inside your body, inside, which controls the systems, the process. Like you have the excretory system, the digestive system, the circulatory system, the skeleton system, the endocrine system, the lymphatic system, the respiratory system, circulatory system. ये सभी systems को कैसे हमारी बॉडी अंदर से आराम से चल रही है। एक पावर है जो उस पूरे प्रोसेस को चला रही है, करेक्ट? और हम कह रहे हैं आई एम अलाइव, बट हाउ यू आर अलाइव? बिकॉज देयर इज सम पावर, अ प्राण शक्ति, अ वाइटल फोर्स व्हिच इज रनिंग द एंटायर सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो वो प्राण शक्ति भी स्ट्रांग है। तो अगर वो हमारी प्राण शक्ति स्ट्रांग है, हमें उस प्राण शक्ति को समझना है ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हमारी अच्छी हेल्थ बने। So let's start with this immunity के साथ ही। तो अगर हम अपनी बॉडी को समझे, if we completely understand our body, and I'm sure most of you would think, क्या हम really अपनी बॉडी को समझते हैं? अगर नहीं तो आज से हमें अपनी बॉडी को समझना शुरू करना पड़ेगा।
तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारी 70 से 80% जो इम्यूनिटी है वो हमारे गट से आती है. It comes from the gut. Gut is the alimentary canal, your stomach, your digestive system. If that is strong, if there is some kind of an issue with your digestive system, your gut, right? For example, you have a digestive problem, indigestion problem, you have a gas, you have a bloating, and more importantly, constipation. अगर कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, राइट? तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे, बॉडी के अंदर ही जमा हो रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, अब जब कभी ऐसे में वायरस अटैक करेगी तो वायरस के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट आपकी बॉडी को मिलता है टू फीड ऑन. The first thing is we have to take these toxins out of our body. इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी. तो अगर आपको अपने 70 से 80% इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है तो आपको अपने गट को स्ट्रांग रखना होगा, उसको हेल्दी बनाना होगा. There shouldn't be a problem, any kind of a problem with your digestive tract, right? Like bloating, gas, indigestion, constipation. तो इसको पहले उठा के निकालिए. Now, second very important is your liver. Liver is another organ which is very important organ. What it does, it also, detoxify the blood, purify the blood. It purifies the blood. हम जब खाना खाते हैं, right? We eat food, right? And जो ये blood है, जो digestive system से जो liver है, जो blood receive करता है, उसको purify करके, and again it throws into the body for the better circulation, for the better performance of the body, right? So अगर इसी में if he doesn't, अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं करे, फिर वही टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाकर वो अपने अलग अलग रोगों के नाम से वो diseases will come out. Like we have high blood pressure, we have a diabetes, we have so many other diseases which will come out. So the second very important is your liver. अगर हमारा liver strong है तो हमारी immunity कहीं नहीं चलती. So ये जो organs मैंने आपसे discuss किए, your gut, your liver has to be strong enough, has to be healthy enough to have a better immunity. Now let's see how we can actually, with what steps we can follow so that I can have a better immunity, a strong immunity, and a healthy me, right? So two things. There are so many things which I will begin, but very important is हम सारे की सारे, I mean, we all are aware about the nature and we are connected. We are connected with the nature. If not, we must start getting connected with the nature. We should get connected with the nature. We should connect ourselves with the nature. Right? Number one, we should understand the basic principles of the Mother Nature. So, अगर हम अपने खाने की कुछ आदतों को अगर हम बदल लें, अपना लाइफस्टाइल बदलने, जो मैंने पहले डिस्कस किया इन द बिगनिंग इटसेल्फ, तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा गट, हमारा लीवर स्ट्रांग रहेगा. पहला जो है वो है कि हमें वो फूड खाना चाहिए जो डायरेक्टली प्रकृति, नेचर हमें देता है, which comes directly from the nature. Food which comes directly from the nature. That is your fruits, your vegetables, अनाज, जितने भी हम अनाज हैं, सीरियल्स है, पल्सेस है, right? Nuts हैं. So these are the one which we get straight or directly from the nature. And moreover, these should be, and these all are living food. Right? मैं लिविंग फूड की बात इसलिए कह रही हूँ कि नंबर वन, वो फूड जो आपको प्राकृतिक से, नेचर से सीधा प्राप्त हो, डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है, और वो लिविंग फूड हो. When I say living food, जिसमें प्राण शक्ति हो, which comes straight from the nature and has a life in it. Why? Because the food which has a life and we eat it, I'm sure that would give us life. And the food which doesn't have a life, which I will discuss, right? Which doesn't have a life, which is a dead food, और वो उसको अगर हम खाते हैं वो हमें लाइफ कैसे दे सकता है? For example,
मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शेयर करती हूँ कि अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमें भूख लगती है हम कुछ भी स्नैक्स पिकअप कर लेते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, मिक्सचर हो गया, सो मेनी अदर थिंग्स विच वी काइंड ऑफ बर्गर हो गया, राइट। खाना नहीं बना तो लेट्स पिक अप समथिंग फ्रॉम द मार्केट। अभी तो वैसे भी बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस हमने थोड़ा थोड़ा क्या बहुत 2 महीने तो 3 महीने अपनी किचन का ही खाना खाया है, तो आई एम श्योर उसने आपको बहुत सारी आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी को अच्छा बना दिया होगा। आपके बॉडी से कई टॉक्सिन्स जो होंगे वो निकल गए होंगे इन 2 ढाई 3 महीनों में। But yes, we'll have to further make our body strong. So keep these things in your mind that eat. So when you feel hungry, right, you must, when you feel hungry, you must feed on things like, not on things like biscuits, Maggie, burger, or these kind of things we should not feed on. We should feed something which gives us a life. करेक्ट। जैसे कि अगर हमने बिस्किट लिया या मैगी ली, अगर हमने इसको ट्राई किया कि चलो आज इसको मैं बीज एग्जांपल देखते इसमें लाइफ है कि नहीं है। अगर मैंने इसको बीज दिया, मिट्टी में लिया, मिट्टी में इसको बीजा, चलो जी 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, हफ्ता वेट किया, 10 दिन वेट किया, 20 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, करोड़ दिन, बट उसमें से कुछ भी कोई पौधा नहीं निकलने वाला, या दूसरी मैगी एक मैगी का पेड़ नहीं बनेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं एक गेहूं का दाना, दाल का दाना, राइट, चावल का दाना, अगर मैं इसको मिट्टी में बोती हूँ तो उसमें से एक कुछ दिनों बाद ही आप नोटिस करेंगे कि उसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट विल कम अप। इट इज वेरी क्लियर कि उसमें लाइफ है। तो हमें, अगर मैं वो चीज अपने बॉडी में डालती हूँ जिसमें लाइफ है, तो बहुत प्रूवन है ये, इट इज वेल एक्सप्लेन, वेरी क्लियर कि वो मेरे को जाके जिंदगी देगी, अंदर मेरे प्राण शक्ति को बढ़ाएगी, ना कि उसको कमजोर करेगी। जो डेड फूड है जो हमारे प्राणों को कमजोर करता है। उसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, हम क्या करते हैं घरों में, मोस्ट ऑफ द पीपल वी मेक सब्जी, बहुत सारी हम सब्जियां बना के रख के फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, और कर करके हम आज हमने इसको यूज बना के, हम से कुक करके, वी हैव कुक दोज वेजिटेबल्स एंड देन वी हैव स्टोर्ड इट इनसाइड द फ्रिज, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल। अब उसी वेजिटेबल्स को जैसा जैसा हमें जरूरत है हम निकालते हैं, खाते हैं, फिर अंदर रख देते हैं, फिर खाते हैं, फिर अंदर। दिस आई हैव सीन इट, आई हैव नोटिस्ड मेनी टाइम्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आप इसको ये समझिए कि जब हमने खाना बनाया तब तक तो वो लाइफ था, देयर वाज अ लाइफ इन इट, पर लेकिन जब हमने उसको स्टोर कर दिया और फिर निकाल के जब खाया, तो उसकी जो उसमें जो लाइफ थी, उसमें जो न्यूट्रिशंस थे या न्यूट्रिशियस उसकी जो वैल्यू थी, वो सब डेड हो गई। इट इज एज इक्वल टू योर डेड फूड। तो हमें वो फूड भी अवॉइड करने, हमें हमें वो ही खाना खाना है जैसे जैसे हमने गैस पे या चूल्हे पे बनाया और डायरेक्टली हमारी प्लेट पे आना चाहिए। और मैक्सिमम आप 3 घंटे, एक पहर 3 घंटे से मैक्सिमम 4 घंटा के अंदर अंदर आपको वो फूड को कंज्यूम करना होता है, नहीं तो वो बासा कहलाता है और डेड फूड कहलाता है। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी बासा फूड आप नहीं खाएं, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू या न्यूट्रिशन वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, वो तामसिक हो जाता है, वो डेड फूड हो जाता है। तो वो अंदर जाके आपको आपका स्टमक जरूर भर देगा कि हाँ पेट भर गया मेरा, वो एक मेंटल को, एक माइंड को आपके सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ पेट भरने का सिग्नल होगा, ना कि आपको एक 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 न्यूट्रिशियस फूड और आपके जो पौष्टिक खाना जिसको हम कहते हैं, ताकि अंदर जाके आपकी वो हर जो आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो टिश्यू हैं, उनको लाइफ नहीं देगा वो, रेदर उसको जाके वो और वीक बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो लेवल है आपकी बॉडी का वो कमजोर हो जाएगी। वो कमजोर होगी तो अगेन यू विल बी प्रोन टू मेनी डिजीजेस। So this is second factor. Eat living food which has a life in it. Do not eat the food which is dead food. Now, अब उनका क्या, ये तो हम खाना अपने घर की बात हो गई। वो फूड जो हम बाहर से खरीदते हैं, which is packed one, which is tinned, which is canned, right?
कैन यू इमेजिन, वो तो 3 महीने पहले, 3 साल पहले बनाया होता है. So many years back, these guys, the people, the manufacturer, उन्होंने खाना बनाया, बना के उनको डिब्बों में स्टोर किया. ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, एरेटेड जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, राइट, इनको भी बना के इन्होंने स्टोर किया और उसके अंदर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डाल के इनको लाइव रखने की कोशिश की ताकि उसमें से स्मेल नहीं आए खराब होने की और वो एज फ्रेश लगे. कैन यू इमेजिन अगर हम वो केन, टिन या पैकेज्ड फूड खाते हैं जिसमें केमिकल है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव से उसको स्टोर किया गया है ताकि वो आपकी जब तक आपके पास पहुंचे तो वो फ्रेश लगे, राइट. कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ जो आपको नुकसान वो आपकी बॉडी को कर सकता है अगर आप वो फूड कंज्यूम करते हैं. उन्होंने वो प्रिजर्वेटिव्स, वो केमिकल यूज किया क्योंकि उन मैन्युफैक्चरर, उन दुकानदारों को अपने उस प्रोडक्ट की लाइफ, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने इनमें ये प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल डाला. उनकी शेल्फ लाइफ तो उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन हमारे लाइफ, बॉडी की जो लाइफ, शेल्फ लाइफ है, वो रिड्यूस हो जाएगी. तो इट इज वी हैव टू डिसाइड, हु हैज टू डिसाइड, वी हैव टू डिसाइड दैट हमें वो फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही नहीं कि खाना चाहिए. इट इज वेरी क्लियर दैट वी शुड नॉट. If we want to make our immunity up, enhance our immunity up, we should totally not even look at those products. क्योंकि उन्होंने, मैन्युफैक्चरर ने, दुकानदारों ने अपना प्रॉफिट कमाना है, उन्होंने पैसे कमाने हैं. These are all man-made products in the factory, so we should not take it, we should not buy it, because those people are making it, manufacturing it only because they want to earn profit, they want to make money, but not at the cost of our health. So health, your health, it is your health, so we should not intake those foods also. So totally avoid it. Correct? Now, secondly, very important is you must eat the food which is wholesome. जो अपनी जो फूड जिसमें कि पूर्णता है, which is complete by itself. For example, क्योंकि there is some reason ना why this nature has given a coconut. हमें उसने खजूर क्यों दिए? वो उसको चीनी बना के भी तो हमें नेचर हमें दे सकती थी, राइट. खजूर दिया, जिसमें कि नारियल दिया, जिसमें नारियल दिया, करेक्ट. अभी हमें गन्ने का रस दिया जिसे हम गुड़ बनाते हैं, विच इज अगेन शुद्ध, राइट. आलू दिए, ना कि आलू के चिप्स हमें दिए जो हम बाजार से खरीद के मजे से खाते हैं. वी लाइक इट, वी काइंड ऑफ relish on it, राइट, बट इट हैज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. तो नेचर को पता है कि आज जो खुद हमें उन्होंने आज हमें जो भी हमें फूड है जो धरती से हमें डायरेक्टली मिलता है, उसके अंदर वो सब न्यूट्रिशियस वैल्यू है, फूड वैल्यू है जो एक हमारे शरीर की डेवलपमेंट के लिए जरूरत है. मदर नेचर को पता है कि कितना मुझे इस फूड में मुझे कितनी इसमें इसको वैल्यू डालनी है, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितने विटामिन, कितने मिनरल्स, आई हैव टू पुट इन. मदर नेचर को सब पता, तो उन्होंने पूरा डिसाइड करके ही इस नेचर का पूरा नेचर के द्वारा जो ये प्रोडक्ट्स बनाई है उसका निर्माण ही वैसे किया है ताकि हमें, हमारी बॉडी को वो सब मिल सके. हमें इसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेच होकर आर्टिफिशियली मेड प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, नहीं करना पड़े. दैट इज व्हाट इज दी जो नेचर ने पूरा प्लान किया. तो कोशिश कीजिए कि जब भी हमें भूख लगे तो हम इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन the products which is dead, like you may be sometimes what you feel be hungry, okay, biscuits पड़े हैं, biscuits खा लिया, mixture पड़ा, mixture खा लिया, right. कुछ और product है which is again something of that sort, we normally pick it up and we just have it. So I would say avoid it. Instead of eat, आप घर पे नारियल कोकोनट है, इसमें पानी, यही सेम वाला कोकोनट से हम इसको, आप कोकोनट लाइए, कोकोनट को अपने घर पे रखिए, जब भी आपको भूख लगे इसके स्लाइसेस काट के रख लीजिए. Whenever you feel hungry, that you feel like eating something, you can have 2 slices of 10 नारियल, जिसे हम गिरी भी बोलते हैं, खोपरा भी बोलते हैं, तो you can have
the 2 slices, 3 slices of coconut. So that will give you strength, or will give you a lot of minerals, will give you a lot of, you know, आपको ऑयल भी बॉडी को मिलता है, शुद्ध ऑयल मिलता है. So कोशिश कीजिए आप ये खाइए. मीठा खाने को मन करे तो आप डेट्स खाएं, जैगरी खाएं, और शुगर, व्हाइट शुगर की जगह आप यूज करें जैगरी को, राइट? क्योंकि शुगर क्या है, फ्रेगमेंटेड है, खंडित है. इसको शुगर को बनाने के लिए ये कई ऐसे केमिकल प्रोसेस को गुजारा जाता है. एक बहुत ही हेवी और डेंजरस और यू नो इसमें से गैस पास की जाती है ताकि ये एक प्योर, एक वाइट चमकीली शुगर बन सके. So I would suggest we must avoid this in case you really want to work on your immunity, right? And towards the end, I will be also discussing with you the डाइट प्लान में आपसे डिस्कस करूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, ताकि लाइफ लॉन्ग आप उससे अगर जुड़ जाएं उस प्लान से, तो आपको स्पेशल कोई एक ऐसा स्पेशल कोई किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे को इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए. तो ये एक आप लाइफ लॉन्ग पैटर्न, लाइफ लॉन्ग फॉर्मूला जो आप अपना सकते हैं. नाउ we must eat what is living, what comes straight from the nature, the one which is the food which is wholesome, which is complete in itself, right? And we must eat food which has water content, जिनके अंदर की जो कि water rich food है. we must eat water rich food. So there are two kinds of food, water rich and water poor food. आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 70%, 70% पानी है. 30% जो है वो क्या है, मसल, बोन एंड कार्टिलेजेस. तो अगर हमारी बॉडी में 70% पानी है, सो हमारे खाने का तरीका और जो हम खाना खाते हैं वो भी 70% वो होना चाहिए जो वाटर रिच फूड है. जैसे कि वो फल, जैसे आपके पास पपीता है, और इस मौसम में अगर हम बात करें, हमारे पास पपीता है, हमारे पास वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, राइट, अनार है, ग्रेप्स है, राइट. तो ये सारे जो है इट हैज मोर देन 90% ऑफ वाटर कंटेंट. वाटरमेलन में आप देखोगे तो 92, 93, 94% ऑफ वाटर कंटेंट इट हैज. तो हमारी जो आज की जो डाइट है वो वाटर रिच होनी चाहिए. हमारी जो, अगर आप प्लेट अपनी आप बनाते हैं तो प्लेट में इंश्योर कीजिए कि आपकी प्लेट में 70% जो आप प्लेट है वो फिल करें 70% ऑफ वाटर रिच फूड एंड 30% ऑफ योर वाटर पुअर फूड. लाइक आपकी रोटी हो गई, अनाज हो गया, चावल हो गई, दालें हो गई, ये सब. और दालों में भी आप कोशिश कीजिए कि आप स्प्राउटेड दाल खाएं. इसके पीछे भी एक रीजन है, स्प्राउटेड दाल, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन अनाज की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, these are the, it takes time to get digested in your body. It takes lot of time. जो ये अनाज है हार्ड है बिकॉज ये हार्ड होता है, तो it takes time. अगर हम बात करें फ्रूट्स की, fruits takes 3 hours to get digested by your body. And when you talk about vegetables, it takes 6 hours to get digested. When you talk about anaj, pulses, cereals, it takes a lot of time. It takes 18 and more than 18 hours to get digested. So now you can understand कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, how do you want it. हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने ब्रेकफास्ट किया, चाहे आपने रोटी खाई, चाहे चावल खाए, चाहे आपने रोटी खाई या पराठा खाया इन द मॉर्निंग, चाहे ब्रेड खाई आपने इन द मॉर्निंग में, लेकिन हमारा 1:30 बजे, 1 बजे, 1:30, 2 बजे फिर हमारा लंच तैयार होता है, जिसमें हम फिर हमारे पास रोटी है, चावल है खाने के लिए, एंड नाइट में फिर भी तो डिफरेंस आप देखेंगे तो 4 आवर्स का डिफरेंस है. तो अभी हमारा पहला सुबह का जो अनाज था, जिसको मैंने कहा कि 18 घंटे लगते हैं अगर मैंने 2 रोटी खाई है, इट शुड टेक 18 hours to get digested, right, as per the system. 18 hours पे अभी कंप्लीट नहीं हुए, मैंने दूसरा अनाज डाल दिया, अभी वो भी नहीं डाइजेस्ट हुआ था, मैंने तीसरा अनाज रात के खाने में डाल दिया. सो कैन यू इमेजिन कि मैं कितना अपनी बॉडी को ओवरलोड कर रही हूँ. सो मेरा जो बॉडी का जो वाइटल पावर है, प्राण शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वो उसको पचाने में ही लगा हुआ है. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट आई सेड.
तो आपको अपनी जब डाइट प्लान करते हैं, जब आप अपना खाना भी घर पे बनाते हैं या कुछ भी खाने के रिगार्डिंग आप प्लान करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, माय सेमिनार, तो आपके उसमें इंश्योर कीजिए कि 70% आपका जो फूड है वो वाटर रिच हो, राइट। तो ये आपको इंश्योर करना है। तो बाकी जो अनाज है वो आपका 30% होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी को उतना समय दे सके। यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर बॉडी. If you would love your body, the body will love you. So it's a vice versa. So please understand this, right? So start loving your body, start feeding what you know. Your body will tell you. अगर आप अपनी बॉडी को समझना शुरू कर देंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि बॉडी हर स्टेप पे आपको बताती है कि नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बट लेकिन we force our body to feed, to eat those things which body is saying no. तो आज से हमें ये देखना है कि बॉडी हमें जो सिग्नल्स देती है, हमें उन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करना है, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ बॉडी. Because as I said, if you take care of your body, your health, your body will take care of you. So please remember this. It is very, very important. क्योंकि हम कहते हैं कि जो, it has been said कि आप वो हैं, मतलब हम जो खाना हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में दिखता है. It is visible on our body. It is visible on our face, what we eat. So we have to be very selective, very choosy when we eat food. तो ये चीजें अपने दिमाग में रखिए, जब भी आप खाना आप चूज करें तो eat living food. What is living? Eat what comes straight from the nature. Eat which is wholesome. Eat which food which has more water content, water rich food. अगर आप अपना पूरा ये खाने का, अगर आप इन चीजों, इन 4 पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान करके अपना पूरा डाइट बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, या अपने खाने का जो स्टाइल है वो अगर आप बदलते हैं, तो आई एम श्योर आपकी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बाय डिफॉल्ट अंदर से चेंज अब डेवलप होनी शुरू हो जाए, अंदर से वो सुधार ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाए. तो अगर आप इस जो अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने आपसे डिस्कस किया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं 3 महीना, 90 डेज, 90 डेज का लॉजिक क्या है मैं आपको बताती हूँ कि 90 डेज में हमारा ब्लड अगेन इट गेट्स renewed. I would say renewed is a, I hope you will understand this term. वो renew होता है, you find a new blood. Okay, so 3 महीने हमें अगर हमें 3 महीने आप अगर इसको फॉलो करते हैं, you will be the healthy you again after 3 months, after 90 days, and you will have a wonderful immunity. क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसी है कि अगर आप कहें कि अगर मैं इसको, आज मैंने एक हल्दी का एक चाय बना के, हल्दी की चाय बनाई, उसमें नींबू डाला हल्का सा, उसमें मैंने सिनेमन डाली, और बाकी अपने जो रसोई की जो स्पाइसेस हैं या हर्ब्स हैं उसको डाला, और अगर ये मैं काढ़ा मैं रोज पीना शुरू कर दूं, 1 हफ्ते में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. तो ऐसा नहीं होता है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वी हैव टू अंडरस्टैंड. Yes, to an extent it will help you, but then if you want to be, strong enough throughout your life, then इन चीजों को आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा. You have to make these things as your lifestyle. जो डाइट हमने डिस्कस की, जो ये स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप इनको सबको रिप्लेस कर देंगे, राइट, तो आई एम श्योर ये आपका लाइफस्टाइल बन जाए तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी एनहेंस हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. In case you have any questions also, you can always
leave your query in the comment section. क्योंकि मेरा basically yes, I have few more things to discuss, to talk about. I will be again talking to you or discussing with you the diet plan. पूरा discuss करूँगी आपके साथ, जो आपका एक daily routine होना चाहिए. आप अगर उसको अमल करते हैं, follow करते हैं, so that will help your body, will help you to have a great health. क्योंकि ये एक दिन का process नहीं है, मैंने कहा. It is the process of, it's a continuous process. You have to stick to it, you have to follow it religiously, I would say. जैसे आप सुबह उठ के you know, you once you finish up with your daily course, you go and worship, you अब धूप बत्ती करते हैं, right? सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, then you start your the daily routine. तो उसी तरह से ये भी एक पूजा है. अगर हमें ये you know अगर हमें ये जन्म मिला है, we have got this birth and we should live healthy and happily. This is the funda we have. And I'm sure all of us want that. सबको वही चाहिए कि मैं healthy हूँ, मैं मैं अच्छा रहूँ या अच्छी रहूँ, healthy होना चाहिए. I should be healthy, in simple words, right? So, तो यही एक important चीज है. तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से, before we go into the diet plan, मैं आपसे कुछ योगा के टिप्स भी कुछ डिस्कस करना चाहूंगी कि किस तरह से, ये तो एक डाइट का है कि अगर हम अपने डाइट में ये चेंजेस लाते हैं, that would benefit, that will give us a benefit. And yoga meditation, ये दो चीजें जो हैं, अगर आप ये भी अपनी लाइफ में एड ऑन कर लेते हैं, so that will help you to a great extent. इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए अगर आप 3 प्राणायाम भी रोज करें, तो आपकी इम्यूनिटी कई हद तक इम्प्रूव हो सकती है. But again, as I said, you'll have to practice religiously and every day. Have to get into that habit. It's not that कि आज मैंने किया, कल मैं नहीं कर पाई because of the busy schedule. इसको भी आपको एक अपने शेड्यूल में डालना होगा. तो 3 प्राणायाम हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. अगर आप उसको रिलीजियसली करते हैं, नंबर 1 द कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, and you have Surya Bhedi pranayam. Once again, I'll repeat: Kapalbhati pranayam, Bhastrika pranayam, and Surya Bhedi pranayam. Now, people who have, they have a high BP or any heart problem, so they should consult first. But then again, others can practice these pranayams, which will actually help you with the flow of energy in your body. और जब हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है, राइट, तो क्या होता है? ऑफ कोर्स योर टॉक्सिन्स मूव आउट ऑफ आवर बॉडी, योर ब्लड गेट्स प्यूरिफाइड, राइट, इट गिव्स एनर्जी टू योर बॉडी, यू फील हेल्दी, यू फील एनर्जेटिक, राइट. सो these pranayams helps you. And moreover, these pranayams makes your respiratory system strong, राइट. आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है. प्रैक्टिस दिस एवरी डे. एंड ऑल्सो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. तो आप ये 3 प्राणायाम भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, इट विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट. नाउ मे बी प्राणायाम को कैसे करना है, कैसे इसको इसका क्या प्रोसेस है, that maybe we can discuss later, or maybe in the next session we can talk about. Now, secondly, let's quickly go, we can go and discuss the diet plan, that what should be your diet plan जो आप follow कर सकते हैं. जैसे ही आप सुबह उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 6 साढ़े 6 आप जागते हैं, आप सबसे पहले आपने गिलास, अपना पानी का गिलास आपने पीना है, आधे से 1 गिलास पानी वो जरूर पीना है. क्योंकि रात भर आपके बॉडी में
अब रात भर आपकी बॉडी ने काम किया है, द बॉडी हैज वर्कड थ्रू आउट द नाइट, डाइजेशन में उसने अपना काम किया, और जो आपके पूरे दिन बॉडी के अंदर टूट फूट हुई थी, टिश्यूज थे, सेल्स थे, उनको रिपेयर किया, राइट, नए सेल्स आए। तो पूरी रात बॉडी ने काम किया है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाला है, राइट। तो अगर आप एक गिलास सुबह, पहला काम जो है, उठकर आप आधा गिलास या एक गिलास जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, ताकि वो कचरा जो आसपास चिपका हुआ है इट गोस फ्लशेस डाउन एक्चुअली, राइट। सेकंड, उसके करने के पीने के बाद आप जो अपनी प्रेयर है वो प्रेयर कीजिए अपने भगवान को, थैंक्स गिविंग प्रेयर, जो भी आपके मन में है, दैट यू कैन वर्शिप, and then you can get up, move around, do your yoga or exercise, meditation you can practice। आधे घंटे के बाद या 45 मिनट जो भी आपने इस पे लगाया या 1 घंटा, then you can have a immunity booster juice which is a vegetable green, जिसको हम ग्रीन जूस भी कहते हैं, जिसको हम मल्टीविटामिन जूस भी कहते हैं। ये 1 गिलास 250 ml या 300 ml आप ले सकते हैं। इसके बाद अब ये जूस आप किसका बना सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सफेद पेठा सुना है, सफेद पेठा, एशगॉट, राइट, इजली अवेलेबल है, यू कैन बाय दैट। उसके उसको आप काटिए बीज को, और जो सॉफ्ट पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट को आपने इस्तेमाल करना है, उसकी जो सीड्स है उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। यू कैन पिक अप दिस मच ऑफ योर फॉर 1 ग्लास, एंड आप उसको सिंपल मिक्सर में, उसको जूसर में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जूसर में डालेंगे तो यू नीड मोर, राइट। सो इतना पीस आप अगर आप लेते हैं, उसको आप मिक्सी में, नॉर्मल मिक्सर जो है उसको ब्लेंडर में आप ग्राइंड कीजिए, देन यू विल हैव टू पुट वाटर इन इट, और यू कैन ऑल्सो ऐड नारियल पानी इन दिस इफ यू वांट, अदरवाइज नॉर्मल वाटर विल ऑल्सो डू। आप डाल के इसको ग्राइंड कीजिए, इसको ब्लेंड कीजिए, एंड देन यू डोंट नीड टू फिल्टर इट। बहुत अच्छा इसमें घुल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इट गेट्स मिक्स्ड अप वेरी नाइसली। सो दिस इज 1 ग्लास ऑफ योर मल्टीविटामिन जूस। इसके अंदर आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, 10 से 12 कड़ी पत्ता आप डाल दीजिए। आप इसके अंदर मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर आप लेमन भी अगर आप डालना चाहें तो लेमन के भी फ्यू ड्रॉप्स और हाफ लेमन यू कैन पुट इट। सो ये आपका गिलास तैयार है, और इसको आप दिन में जो आपका समय था 7 o'clock, let's say 6 o'clock you got up, 7 o'clock you can have this, or between 7-7:30 you can have this glass of multivitamin juice। अब ये पेठे के जूस का काम क्या है कि ये क्या करता है, जैसे ही आप पीते हैं तो आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को ये बाइंड करता है, उनको बांधता है, अट्रैक्ट करता है। इट्स लाइक ए मैग्नेट, it attracts the toxins towards itself and then it flushes out the toxins from your body। इसके और भी कई बेनिफिट्स हैं, तो ये आप डेली ले सकते हैं। अगर पेठा अवेलेबल नहीं है तो आप जुकीनी भी यूज कर सकते हैं, जो लंबा कद्दू हरा होता है, लंबा सा, उसको जुकीनी कहते हैं, दैट कैन बी यूज्ड। यू कैन ऑल्सो एड, जैसे हम खीरा ऑल्सो कैन बी यूज्ड, राइट। ये हमारे जितने भी जो भी ये हमारी गर्मियों के हैं। सर्दियों में यू कैन ऑल्सो ऐड पालक, इसमें डाल सकते हैं सर्दियों के वक्त में, राइट। यू कैन यूज पालक, यू कैन ऐड खीरा, यू कैन ऐड zucchini, right। You can also add घिया का जूस in the morning। So एक वेजिटेबल जूस जिसको हम ग्रीन जूस है, ये आपने सुबह मॉर्निंग में लेना है। अब आता है 1 घंटे के बाद, आप 1 घंटे तक यू हैव टू गिव 1 hour, और 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना, बिकॉज ये अपना अंदर काम कर रहा है, इट इज वर्किंग इनसाइड योर बॉडी। सो इफ यू पुट समथिंग इनसाइड योर बॉडी, आप उसको, you will be hampering that process, so we will not hamper that process, we will wait। so by the time whatever work you would like to finish off within that, you can finish that। so 1 घंटा वेट कीजिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, nothing like it। so उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगे, आपका जो पहली मील होनी चाहिए वो होनी चाहिए सॉफ्ट एंड लाइट। तो आप जो भी इस वक्त सीजनल फ्रूट्स हैं,
वो आप अपनी एक प्लेट तैयार कीजिए। 3 से 4 फ्रूट्स आप अपनी प्लेट में डाल सकते हैं। वाटरमेलन है आपके पास, राइट? जैसा मैंने कहा कि वाटर रिच फ्रूट, तो उसको ध्यान रख के डालिएगा, राइट? तो एक थोड़ा सा 30% मैंने कहा कि वाटर कोई भी हो सकता है, करेक्ट? तो उसमें आप नॉर्मली केला आप डालना चाहें तो केला पसंद है, केला भी डाल सकते हैं। तो आप वाटरमेलन है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है, मस्क मेलन है, पपीता है। तो ये आप 3 से 4 फ्रूट्स अपनी प्लेट में भरिए और खाइए, राइट? आपको गिनना नहीं है कितनी कैलोरीज है, आपको ये भी नहीं गिनना कि इसके अंदर कितने मल्टीविटामिन है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, कितना फैट्स है। All that you need not count it. Just have it. It is healthy enough. It is very, very nutritious. You don't have to count on it. If you start counting it, then you lose on that. Please do not count. Just have it. जो सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो आपको सब वो देगा, जो सारे वो आपकी बॉडी को, जो आपकी बॉडी को जो मल्टीविटामिन, जो विटामिन, जो मिनरल्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो सब ये देगा. We just have that. A plate full of fruits. Right? Relish on it. Enjoy it. And आप जब ये खाएंगे आपको भूख नहीं लगेगी. Trust me, you will not feel like eating anything else apart from this. You will be full. Your body will say, I am full. क्योंकि आपने जो वेजिटेबल जूस पहले सुबह पिया है उसने भी आपको बहुत, वो भी आपको बहुत फुल करता है. So, उसके बाद आपने 1 घंटे बाद जब फ्रूट खाया तो यू आर एकदम फुल, तो आप बिल्कुल फुल हो गए. नाउ इसके बीच अब उसके बाद आता है मिड मील, जिसको हम मिड मील एक बोलते हैं. और उसमें आप क्या खा सकते हैं? इसमें बीच में आप एक ले सकते हैं, कोई भी हर्बल ट्री आप ले सकते हैं. हर्बल ट्री में आप अपनी चाय बना सकते हैं. जैसे हमने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दूध अगर हम चाय में दूध इस्तेमाल करते हैं वो हमें अंदर जाके हमारे डाइजेस्टिव, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रबल देती है, तो वी वुड अवॉइड इट, right? So instead you can have a herbal tea. You can make it at home. Like you can have a ginger and a lemon, ginger lemon tea, which is a detoxifying tea. It will detoxify your system completely and also energy giving, right? So you have to grate. You can one teaspoon of ginger. You can grate it, and then 1 or 2 small slices of lemon. You can put it in a cup, and then you can boil the water on the side. Then pour boiled water in the cup, right? So your lemon ginger tea or ginger lemon tea is ready. Ginger lemon tea is ready. Ginger lemon tea is ready, right? And you can, it is totally up to you whether you want to add a teaspoon of honey in it, right? If you do not want to add it, don't add it. Just have it sip by sip. You would love it. You would relish on it, right? It has its own benefits, as I discussed. Now, once along with this, if you want to have, you can have nuts. You can have 7 to 8 बादाम और एक आप वॉलनट खा सकते हैं इसके साथ. उसके बाद लंच में आप कोशिश कीजिएगा, लंच आपका 1 से 2 के बीच में आपका लंच हो जाए. लंच में आप खा सकते हैं 2 चपाती, और कोशिश कीजिएगा चपाती को भी आप इसमें आप कुछ भी ग्रेट करके इसमें मिक्स कर सकते हैं, ताकि आप वो वेजिटेबल, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम वेजिटेबल्स खाएं जिसमें पानी है, राइट? तो आप अगर हम प्लेन चपाती भी खा सकते हैं, 2 प्लेन चपाती और सब्जी खाएं. कोशिश कीजिए दालों को अवॉइड करें. दालों को अगर आप खाना भी चाहें तो उसको सैलड में स्प्राउट दाल बना के खाएं, दालों को स्प्राउटेड करके खाएं, राइट? क्योंकि आप जब लंच करेंगे तो आपकी 2 प्लेटें होनी चाहिए. एक प्लेट में सैलड होना चाहिए, जो खीरा है, टमाटर है, राइट? आपका जो एक सैलड पत्ता आता है वो आप उसमें डालिए, नींबू डालिए, आप काली मिर्च का पाउडर है, दैट यू कैन डू इट, और मे बी ये सारा आप उस पे निचोड़ के आप खा सकते हैं. तो पहले आपने एक जो प्लेट तैयार करनी है वो सैलड की तैयार करनी है, तो और दूसरी तरफ आपकी दूसरी प्लेट में आपकी रोटियां और सब्जी होंगी. तो दिस इज मस्ट, सब्जी, रोटी एंड सैलड, ये आपने खाना है, ये आपका लंच है, राइट? सब्जी में आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल है, और कोशिश कीजिए कम ऑयल यूज कीजिएगा. कोशिश कीजिएगा ना आप
सब्जी अगर बनाना चाहते हैं वो आप रिफाइंड ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, आपको सीसम ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं. I think half a spoon or 1 spoon it is more than sufficient. Instead you can use desi ghee ऊपर से, very healthy, right? That you can use it. So eat 2 चपाती, और चपाती को भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने घिया कद्दूकस की, आटे में गूंदा, राइट, उसको आटे में गूंदा, उसकी 2 चपातियां बनी, तो आप इसी तरह उसको आप ये भी खा सकते हैं, और उसके साथ सब्जी अलग से बनी, यू कैन हैव दो स्टफ्ड रोटी कह सकते हैं, यू कैन हैव इट विद द वेजिटेबल. तो ये एक आपका मील है. अगर आप रोटी नहीं है तो चावल खा रहे हैं, रोटी की जगह चावल भी खा सकते हैं, पर चावल इंश्योर कीजिएगा कि चावल जो हमारे हैं वो आप उसको वेजिटेबल राइस बना सकते हैं. लॉट ऑफ वेजिटेबल्स यू हैव पुट इन एंड देन यू कैन cook it and you can prepare it and you can have it, right? But you must have a plate full of salad first and then come to the meal. So this is must. So this is the pattern you have to follow. Now in the evening again you can have a see, morning in case you want to have juice also, instead of herbal tea you can have a juice, or you can herbal tea, you can bring it down here, right? And herbal tea आप कई तरीकों से बना सकते हैं. lot of herbs and spices you have rosemary, thyme, these two are there. You can combine this and you can make a good herbal tea, and or you can just put these herbs in the water, and throughout the day also you can keep on sipping it, right? So इस तरह से आप हर्बल टी इवनिंग में रख लीजिए, और इवनिंग में आप अपना हर्बल टी एक ले सकते हैं. जैसे लेमन ग्रास है, आप आजकल हर की किचन में, किचन गार्डन में लेमन ग्रास अवेलेबल होता है, तो यू कैन ऑल्सो make a very good herbal tea with the lemongrass, ginger, and you can have little lemon, few drops of lemon in it, and honey. Honey is optional again. It all depends on you whether you want to have it or not. So this is your herbal tea which gets ready, which you can have it in the evening. Then in the dinner ensure कीजिए कि sunset से पहले आप अपना dinner कर लें. Very important. So dinner में आप vegetable soup ले सकते हैं, right? And or you can have again 2 chapatis or a vegetable, nothing else, or salad, nothing else. So stick to this diet, this pattern, and I am sure if this becomes your lifestyle, आपकी immunity will, you will see after 3 months the difference. You can notice in another 20 days, or 15 to 20 days you can see the difference in your health. But then of course, yes, if you really want to be fully recovered from any disease, अगर आप ये follow करते हैं तो trust me, आपके अंदर कुछ भी अंडरलाइंग जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी कुछ भी अगर बॉडी से any diseases would be underlying, that would also be resolved, also be removed, और आपकी बॉडी फुल्ली रिकवर कर जाएगी. तो आप किसी भी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, किसी भी बीमारी को दूर भगा सकते हैं अगर आप ये डाइट प्लान 3 महीने भी फॉलो करते हैं. इट इज कम्प्लीटली नेचुरल, कम्प्लीटली कनेक्टेड विद द नेचर, राइट? सो ये इसको फॉलो कीजिएगा. और इसके अलावा है कि अगर आपको, क्योंकि अगर आपको लगे कि हम कुछ नोट नहीं कर पाए या हमने कुछ मिस कर दिया, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई कैन ऑलवेज राइट इट बैक टू यू, और यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद नरेश जी एंड रमन जी, सो दैट मैं अपना उस पर हम आपको रिवर्ट कर सकें. ये एक डाइट प्लान है. आई एम श्योर अगर आप ये फॉलो करते हैं strictly, religiously, as I said, I'm again stretching these 2 words. Why? Because if you follow strictly, and as I said, I just mentioned earlier, and let me conclude it also, that eat living food which has a life in it, eat which is wholesome, right? Which is a wholesome food. Eat food which is water rich food, राइट? सो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, इस डाइट को अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, और प्राणायाम की प्रैक्टिस आप डेली करते हैं, आई एम श्योर योर इम्यूनिटी विल एनहेंस,
अगर कोई आपके क्वेरीज हैं, यू हैव क्वेश्चंस, आई एम एक्चुअली अगेन आई वाज अगेन लुकिंग एट माय टाइम्स आल्सो दैट मेरे सेशन का जो टाइमिंग है वो 6 से 7 था, तो मुझे था कि कुछ छूट ना जाए। तो यस, मैंने कुछ टुवर्ड्स द एंड आई थोड़ा सा स्पीड मैंने लिया, छूटना नहीं चाहिए कि मुझे 7 बजे से पहले पहले कवर करना है, तो वो मैंने किया। तो अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज आती हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं आपकी, जैसे मैंने कहा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, ऑलवेज रीच आउट टू अस। अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आई कैन हैंडल राइट नाउ ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज leave your queries or a comment in the comment box, and like to क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये इस 1 घंटे में मैं आपको बता सकूं, कुछ समझा सकूं कि किस तरह से आप अपनी डाइट में चेंजेस लाके, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इससे पहले कि हम क्लोज करें, बहुत मैं शेयर करूंगी, कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक फास्ट जरूर रखें। हमें अपनी हमें अपनी इस बॉडी को एक आराम तो देना है। सो एक फास्ट हाफ हफ्ते में जरूर रखें, और आपकी लास्ट मील और फर्स्ट मील का जो डिफरेंस है, मिनिमम 14 से 16 घंटे का ही होना चाहिए। अगर ये आप 2 प्रिंसिपल और अपना लेते हैं और एड ऑन कर लेते हैं, यू विल बी द हेल्थीएस्ट पर्सन। आपकी इम्यूनिटी विल बी 100%, राइट? इट विल इम्प्रूव। So please stick to this and follow this. Thank you so much. God bless you all, and we'll meet soon. Thank you. Thank you so much.